ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਦੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਇਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 1/8 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 5/8 ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਅਫੀਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਇਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਜੀ। सर बात करें तो सरोर टोल प्लाजा की, जिस तरह से आज आप मेमोरेंडम लेकर यहाँ पर पहुँचे और आप टैक्सी यूनियन के प्रधान भी हैं, तो बात करें तो जिस तरह से अब NH44 भी वहाँ पे लोगों ने जो है वो बंद किया, युवा राजपूत सभा के तमाम कार्यकर्ताओं को और जितने भी उनके एक्स मेंबर हैं, एक्स मेंबर की बात करें हराजन सिंह हैप्पी जी और मौजूदा प्रधान विक्रम जी, उनको भी पुलिस ने जो है वो हिरासत में रखा हुआ है। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो जितने भी लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। सांबा की भी बात करें तो आज सांबा भी जो था वो पूरा का पूरा बंद था और लगातार प्रदर्शन जो था वो जारी था। तो क्या आज जो आश्वासन दिया गया है क्या वो पूरा होगा या सिर्फ आश्वासन ही रह जाएगा? मैं समझता हूँ कि आज की जो मीटिंग थी अभी हमारी ट्रांसपोर्टर्स की, जिसका हेड किया है हमारे अजीत सिंह चेयरमैन साहब ने, तो सबको आश्वस्त रहना चाहिए कि जैसा उन्होंने एक साझा बयान दिया है कि इस टोल प्लाजा को सस्पेंड किया जाएगा। ये खाली ट्रांसपोर्टरों के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा और हमें पूरा यकीन है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा और ये टोल प्लाजा जो है ये सस्पेंड कर दिया। टैक्सी स्टैंड का हमारा मुद्दा था, उसमें हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की कि रेलवे में हम लोग जो है 52 ईयर से, मतलब 1972 से जब ट्रेन आई थी तब से हैं और उस समय से लेकर आज तक हमने करोड़ों रुपए यहाँ पर किराया दे दिया रेलवे को और आज अचानक से रेलवे ये किसी एक प्राइवेट को इसको प्राइवेटिज्म करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। अगर रेलवे को किराया बढ़ाना है तो हम उसका भरपाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें जो लोग 52 ईयर से यहाँ बैठे हैं लोग और जो समाज की सेवा कर रहे हैं, हर टाइम हम लोगों ने यहाँ पर देश की इस ट्रेन का साथ दिया है आंधी तूफान बारिश में, और हम चाहते हैं कि एलजी साहब ने हमें कहा है कि वो DRM फिरोजपुर से भी बात करेंगे और हमारा मसला भी बहुत जल्द हल किया जाएगा। तमाम नेता भी जो हैं वो सरोर टोल प्लाजा को इलीगल मान रहे हैं। नितिन गडकरी जी की बात करें तो उन्होंने भी इलीगल जो है माना हुआ। फिर भी अब अगर बात करें तो प्रदर्शन हुआ, युवा राजपूत सभा द्वारा कल टोल प्लाजा बंद रखा गया और सूत्रों के हवाले से हमारे तक ये भी खबर पहुंची कि अब जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनसे टोल ज़्यादा लिया जा रहा है। देखिए, जैसा अभी हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बड़े विस्तार से वो बताया कि क्योंकि अगर टोल प्लाजा लग रहा है तो सबसे ज़्यादा वो पैसेंजर जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रक्स है, मेटाडोर्स है, टैक्सी है, ऑयल टैंकर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा बोझ हम पे डलता है। क्योंकि आपने देखा कहीं बस चलती है तो उसमें 8-10 लोग होते हैं और टोल जो वो पूरा लिया जाता है। तो कई बार हमें एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं बचती, लेकिन टोल प्लाजा जो वो देना पड़ता है हमें। लेकिन जैसा अभी चेयरमैन साहब ने भी बड़े विस्तार से आपको सुनाया, चौधरी साहब ने भी आपकी नॉलेज में ये चीजें लाई, तो उसी सिलसिले में उसी का एक कड़ी का एक हिस्सा था। आज जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी नुमाइंदे हैं, प्रधान साहिबान हैं,
हमने एलजी साहब से टाइम मांगा और तुरंत हमें टाइम मिल गया। आप देखिए, हम कहीं चुप करके नहीं बैठे हुए हैं। जैसा 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त को अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लेटर लिखा गया और वो प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि बीच में आपने देखा 15 अगस्त की वजह से कुछ थोड़ा लेट हो गया। और आज ये नहीं है कि हम राजपूत सभा को कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने लोगों की लड़ाई के लिए, वो हमारे भाई हैं। मगर हमने अभी जितनी हमारी टीम थी, चेयरमैन साहब ने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि उनको जो टीम वो राजपूत सभा है उनको, क्योंकि आपने देखा अगर वो कहीं उनको पकड़ा हुआ उनको छोड़ा जाए, क्योंकि हम लोगों के साथ हैं, डोगरा समाज के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं। आपने देखा जब भी कहीं खासकर हमारी जम्मू और कश्मीर के जो हमारा खिता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो ट्रांसपोर्टर हमेशा आगे रहता है। और क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा इदारा है, जब ये बंद होता है तो तभी जाके सारा सिस्टम जो है वो बंद होता है। मगर आज हम उस तभी सारे ग्रुपों के जो प्रधान साहिबान हैं, जेरे क़यादत जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, एलजी साहब से मिले हैं। ये नहीं है कि हम चुप करके बैठेंगे, हमें आश्वासन दिया गया है। और अगर कहीं किसी से कोई गलती होती है तो ये, क्योंकि आप देखिए टोल प्लाजा अगर कहीं किसी ने हटाना है, कहां से हटेगा? इसी, क्योंकि एलजी साहब इस टाइम हमारी स्टेट के राजा हैं, करता धरता है, वो कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो हमने टाइम लिया था और हमें टाइम मिला। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एलजी साहब कश्मीर से जम्मू आए हैं और सबसे पहले हमें मिले, क्योंकि हमें दर्द है हमारे लोगों को, खासकर जो टोल प्लाजा सबसे ज्यादा हमें नुकसान करता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, गाड़ी जाती है, खाली आती है और खाली जाती है, तब भी जाकर वो 400 रुपया हमारी, वो आपने देखा आज जमाना है फास्ट ट्रैक का, वो कट जाता है, चाहे सवारी हो ना हो। तो मैं आपके माध्यम से खासकर अपने ट्रांसपोर्टरों को भी और आम जनता को भी, हमेशा ट्रांसपोर्टर आगे रहेगा। जम्मू खित्ते में अगर कोई भी किसी किस्म का, अगर कोई, आपने देखा कई सारे पहले मुद्दे थे, लेकिन ट्रांसपोर्टर हमेशा आगे लड़ाई लड़ता है और लड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आज जो हमें आश्वासन मिला है उसी का आश्वासन हम लेके अभी वापस जा रहे हैं। और मुझे लगता है 1-2 दिन में ये जो टोल प्लाजा है ये सस्पेंड हो जाएगा और लोगों की जो मांग है वो मानी जाएगी।